yesterday we were discussing the shank filter, right? So we'll move further. Till now we have only discussed assuming the diode is ideal. Now we'll change the thing and we assume diode is practical and will have a voltage drop of 0.7 and 0.3 for silicon and resistor maybe. Let us assume practical diode and let's solve the problem. How we will get the waveform, etc. Now you can be able to mark the attendance cycle, right? So we'll take the problem and solve it so that it will be right. If you have copies, it will be better. So problem is like this. Let me write the problem. In the circuit, given diodes are identical. What is meant by identical? Identical is different, ideal is different. Identical is nothing but if the one diode has X voltage drop, the other diode will also be having X voltage drop. If one voltage has VI characteristics, something like this, the other diode will also have VI characteristics like this. D1 and D2 are identical, nothing but the properties will remain same. Ideal is different, identical is different. Yeah. So given the diodes are identical, the given diodes are identical, and there is one more thing given, and have forward voltage drop of 0.7 volts each. Given these are not ideal diodes. It is given practical 0.7 volts drop, nothing but these diodes are practical diodes. Hence, you have voltage drop of 0.7 volts. If it is ideal diode, you will have drop of 0.0 volts. This drop of 0.0 volts you should consider only in forward bias, because only in forward bias your diode will have forward voltage of 0.7. So we will consider this drop only in forward bias. Yeah. Now, given input is sine wave. So given input is sine wave and with peak value of sine wave 8 volts. Nothing but if input voltage is Vi, it has a peak voltage Vm is equals to 8 volts. This is what it is now. Here, this is given. Now, what we have to do? You have to plot the output waveform and also
transfer characteristics. You have to plot output waveform and as well as transfer characteristics. How is the diode given? Let's see. The circuit is like this. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम 2-3 मेथड खत्म कर चुके हैं, उस टाइप का हो जाएगा. It will be easier. We'll solve very slowly. If you understand this problem, you will be able to solve any parallel flipper problem, even if 10 diodes are given. Yeah. So in your exam, don't expect more than 2 diodes. You will get hardly 2 diodes. You won't get more diodes. This is D1. Diode D1 is like this. And let's see D2 कैसे है. Are you hearing me? Yes, sir. This is output. ये सर्किट दिया हुआ है. ये VI है. ये 4 volts है. If you see, this is positive terminal, this is negative terminal. This is reference voltage 1 for the diode 1. This is given as minus 2 volts. This is plus 4 volts. Now we have different cases in order to draw the output waveform. आउटपुट वेवफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट केसेस आएगा. एक D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स. दूसरा D1 फॉरवर्ड, D2 भी फॉरवर्ड, ये भी तो पॉसिबिलिटी है. और D1 रिवर्स, D2 is reverse, and D1 reverse, D2 is forward. How many combinations? How many combinations? 4. These are the 4 combinations which you will get. So we'll analyze each case by assuming 4 combinations. Yeah. So what is main thing you have to consider? Both the diodes are identical. मतलब अगर D1 का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 है, D2 का भी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 ही होगा. Clear? So let us solve case by case. Now starting from case 1. I am assuming case 1. Clear? Let मैं यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर रहा हूँ so that confusion ना हो. VI be the input. What is VI given? It is sine wave. So VI is sine wave already given in the problem. Let us assume lower reference voltage as VRL. This is lower reference voltage. Let us assume VRH. V yeah. VRH V higher reference. Let me take one call in this. Constantly coming. Sorry. Okay. Now, these are the assumptions, and so that you won't get confused if I write this shortcuts. So I am assuming V naught as output. Okay. Remember VRL, VRH. Clear? What is VRL? What is the lower reference voltage? रेफरेंस वोल्टेज 2 है, उसमें लोअर वैल्यू कितना है?
2 वोल्ट। What? What is the lower reference value? Can you able to 2 voltage. minus 2 volts, right? And what is the higher reference value? 4 volt. 4 volts. But if this was the case when your diodes are ideal, but बात यहाँ पे क्या है, डायोड्स प्रैक्टिकल है तो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है 0.7, रिवर्स वोल्टेज में कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब 0.7 वोल्ट्स डायोड के साथ साथ अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब है मेरा डायोड का पोजीशन ये है, जब भी ये कंडक्ट करता है इट विल एक्ट लाइक ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7। क्लियर? तो यहाँ डायोड का पोजीशन देखो, डायोड का पोजीशन में यहाँ पे क्या है, ये है, और आपका वोल्टेज क्या है, -2 वोल्ट, राइट? दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज योर वोल्टेज। अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो मैक्सिमम मेरा वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ मेरा 0.7 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? 2.7 volts. 2.7 volts. This will be my lower reference value. Clear? 2.7 volts will be my lower reference value. Next coming to diode 2. Diode 2 का पोजीशन क्या है, ये है, और वोल्टेज पोजीशन क्या है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, राइट? यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये 4 वोल्ट है। डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, राइट? कितना है वोल्टेज, 0.7, ये प्लस ये माइनस, ये 4 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 3.3 volts. अरे ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, 4.7 हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा। 4.7 volts is my higher reference voltage. So my VRH will be how much? 4.7 volt, and VRL will be 2.7. Is it clear for all of you? अगर ये क्लियर है तभी आगे समझ आएगा। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर? मैं हायर और लोअर वोल्टेज का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्लियर? तो केस 1 पे आते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशंस है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, एक रिवर्स, एक दोनों रिवर्स, दोनों फॉरवर्ड, एक रिवर्स, ऐसे ये 4 कॉम्बिनेशन में अगर जब भी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जब D1 हो या D2 हो, जब भी ये फॉरवर्ड बायस होता है मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, वो फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ हमने कैलकुलेट किया। जब ये N है और ये P है तो आपका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जैसे कि आपका डायोड ये है, डायोड का P है और ये N है। Whenever diode starts conducting, it will act like a voltage source of 0.7 volts. Why 0.7 volts? It is given in the problem. Assume practical diode and we'll have a 0.7 volts. We'll consider. सर Yeah. सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोले सर आपने, ये एक पॉइंट क्लियर नहीं किया। जब आपका एनोड का पोजीशन ये है, इसमें एनोड कौन सा है, ऊपर कौन सा है, एनोड कहाँ है, कैथोड क्या है बताओ? एनोड ऊपर साइड हो। वेरी गुड, यहाँ पे कैथोड है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज अपीयर होगा, कितना होगा, 0.7 वोल्ट। रिवर्स में कोई फायदा नहीं है, रिवर्स में कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ फॉरवर्ड का देखना है। फॉरवर्ड का 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहाँ पे P है तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर डायोड इस तरह ऐसे पोजीशन में है, सपोज डायोड ऐसे पोजीशन में है, जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा मेरा वोल्टेज सोर्स ये होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव।
जब ये P to N है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, वो कितना वोल्टेज है? 0.7। कौन सा बायस में? फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में सीधा ओपन सर्किट, उसमें कंसिडर ही नहीं करना, ओनली फॉरवर्ड बायस में हमें कंसिडर करना है, क्योंकि गिवन इट इज अ प्रैक्टिकल डायोड एंड हैविंग ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7। इज इट क्लियर नाउ? वही चीज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है VRL के लिए। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे? क्लियर? सपोज D1 ऐसे होता, अज्यूम कर लेते हैं D1 का पोजीशन ऐसे होता और आपका जो -2 वोल्ट है वो ऐसा है, तो बताइए कितना वोल्टेज होगा VRL? ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली कितना होगा? 0.7 वोल्ट। और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, दिस इज 2 वोल्ट। अब कितना होगा? 1.3 1.3 माइनस और प्लस? प्लस माइनस सर, माइनस। माइनस। नहीं माइनस। -2 ज्यादा है ना, -2 प्लस 0.7 कितना है? -0.7। ऐसे हो गया। अब मेरा डायोड ऐसा है तो मेरा वोल्टेज जो है 2.7 होगा, और इस पोजीशन में मेरा D2 है तो इस ऐसे होगा। इज इट क्लियर नाउ? ऐसे करते हैं। अब हमने वोल्टेज वगैरह सेट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हमें वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करनी है, आउटपुट कितना होगा जब ये फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्स होगा, या वोल्टेज लेवल के हिसाब से कैसे कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम। केस 1, first I am assuming my input is less than VRL. VRL कितना है? -2.7, isn't it? Am I clear? yes sir. Yeah. Let me draw the circuit so that confusion will not be there. This is my D1, this is 2, and this is positive voltage of 4 volts, and this is the output. This is my output. यहाँ पे मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, फिर आगे समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है, वेरी गुड। Now, VI is less than 2.7 volts, minus 2.7 volts. तो ये मेरा इनपुट है सपोज, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, इनपुट साइनसॉइडल ऑलरेडी दिया होगा, तो -2.7 कैसे होगा? लगभग यहाँ पे होगा। और नेगेटिव मैक्सिमम कितना दिया है हमारा? पीक वोल्टेज कितना दिया है? 8 वोल्ट दिया है। -2.7 का लगभग यहाँ पे आएगा। तो मैं कौन सा केस कंसिडर कर रहा हूँ? VI लेस देन -2.7, लेस देन -2.7 मतलब -3.7, -4.7, -5.7, जो भी होगा यहाँ तक, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि ये वाला पार्ट जो -2.7 से लेके -8 तक होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में मेरा डायोड D1 क्या होगा, D2 क्या होगा, वो एनालाइज करता है। VI लेस देन -2.7, -2.7 का और कम है, तो लेट अस अज्यूम मेरा VI तो यही अप्लाई होगा। लेट अस अज्यूम -3.7 वोल्ट यहाँ पे है। -3.7 वोल्ट नथिंग बट your N side voltage is lesser and P side voltage is higher.
अब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? यहाँ पे -2.7 मैक्सिमम है और यहाँ पे -3.7 है, तो डायोड फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? -2.7 बड़ा है, -3.7 बड़ा है? -2.7। -2.7। VP ग्रेटर देन VN होगा तभी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब इस केस में VP कितना है? -3.7, सॉरी VP तो नीचे वाला हो गया ना, नीचे वाला कितना है मैक्सिमम? -2.7 is greater than -3.7. Will you accept? यस सर। Is it यस clear? सर, यस सर। तो D1 बताइए क्या होगा? D1 is फॉरवर्ड बायस। forward bias. Very good. Nothing but short circuit. But voltage drop होगा 0.7. वो जो भी होगा वो काउंट होने के बाद मेरा -2 वोल्ट होगा। तो मेरा ये जो पोजीशन होगा, ये जो D1 वाला, ये पूरा रिप्लेस होकर कितना कैसे बन जाएगा? जब डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया, जब भी VA इज लेस देन दिस वोल्ट पे, तो मेरा डायोड का वो ये सारा कैसे बनेगा? तो मैं ये पकड़ लूँ। तो डायोड फॉरवर्ड हो गया और वोल्टेज कितना हो गया? -2.7, राइट? ये है मेरा जब डायोड फॉरवर्ड है। ये क्लियर है? दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। चलो, वही वोल्टेज पे -3.7 यहाँ पे हो रहा है, तो D2 क्या होगा? ये VP है D2 का, ये VN कितना है? 4 वोल्ट्स है लगभग, 4 वोल्ट्स ज्यादा है, -3.7 वोल्ट ज्यादा है। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो इस केस में VN इज ग्रेटर देन VP। VN ग्रेटर देन VP में डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो my at this case one, D2 will be what? Reverse bias, nothing but open circuit. अब बताइए, ओपन सर्किट नथिंग बट इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है? जब ये ओपन हो गया तो V0 कितना हो गया? अब पैरेलल में वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा, ओपन सर्किट है, तो V0 कितना होगा मेरा? V0 विल बी, यहाँ पे जो भी होगा, पैरेलल है ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। मेरा V0 क्या होगा? यहाँ पे जितना होगा कनेक्शन जहाँ पे है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट विल बी VI कैसे होगा? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखो ना, 2.7 वोल्ट। यहाँ पे 2 शंट है ना ब्रांचेस, एक शंट ब्रांच का 0 है, एक दूसरा तो कंडक्ट किया है, उसका वोल्टेज सोर्स कितना आ रहा है? -2.7 वोल्ट। -2.7। तो whenever VI is less than VRL, my voltage will be -2.7। ये एक साइड में रख लो। नाउ नेक्स्ट केस में अंदर बता दूँ। केस 2 मैं अज्यूम कर रहा हूँ, VI ग्रेटर देन VRH है, तो मतलब VI कितना है? ग्रेटर देन हाउ मच? 4.7 वोल्ट। 4.7। यस सर। नो, VI ग्रेटर देन 4.7 वोल्ट्स है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे VI हो गया ना, ये रेजिस्टेंस का ड्रॉप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले रहा हूँ मैं,
अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 4.7 वोल्ट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5.7 वोल्ट यहाँ पे है, 5.7 वोल्ट यहाँ पे है, तो आपका डायोड कैसे बनेगा? अब बताइए, D1 फॉरवर्ड होगा, D2 फॉरवर्ड होगा, क्या होगा बताओ? मैं सर्किट दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। ये आपका सर्किट था, ये -2 वोल्ट था, और ये आपका D1 था, ये D2 है, D2 है फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ +4 वोल्ट। अब बताइए 5.7 वोल्ट पे D1 फॉरवर्ड होगा, D2 फॉरवर्ड होगा? सर 5.7 है। this VN, this VP just -2 volts है। रिवर्स बायस। ये ज्यादा VN is more positive, तो VN is more positive, nothing but diode is reverse bias। यहाँ पे 5.7 है, यहाँ पे 4.7 है, 5.7 बड़ा है, तो ऑब्वियसली मेरा D2 कंडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे D1 क्या है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, nothing but open circuit। D1, D2 is forward bias, nothing but short circuit। शॉर्ट सर्क्यूट मतलब कैसे रिप्लेस करूंगा मैं उसको? फॉरवर्ड वोल्टेज से रिप्लेस करूंगा। फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है? 0.7 है, +4 वोल्ट ऑलरेडी था, तो मेरा इसका कितना हो गया? 4.7 हो गया। ये D1 तो ओपन सर्क्यूट था, और ये -2 वोल्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओपन ऑलरेडी हो गया, और मेरा V2 यहाँ से ले रहा हूँ, तो V0 क्या हो गया? 4.7। वेरी गुड, my V0 is 4.7। Remember, when case 1 V0 is -2.7, when case 2 V0 is +4.7। नो आते ऐसा भी तो कोई वोल्टेज होगा जो दोनों के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। जो VRL से बड़ा हो और VRH से छोटा हो, ऐसा कोई वोल्टेज बताओ, अज्यूम कर लेते हैं। 0 वोल्ट, यही है ना मतलब? इसका मतलब है, तो इसका मतलब है आपका जो ये है और ये, दिस इज माइनस जब ये फॉरवर्ड है होगा, अदरवाइज 4 ही अज्यूम कर लो, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट। अब बताइए, मुझे ऐसा कोई वोल्टेज बताओ जो -2.7 से बड़ा हो और 4 से नीचे हो, कोई भी वोल्टेज, सॉरी 4.7 से नीचे हो। 0 वोल्ट। 0 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो बीच में रहेगा, कोई भी वैल्यू अज्यूम करना है ना, तो मैं 0 वोल्ट अज्यूम कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो मेरा वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। ये तो नहीं बताना है ना इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर आता है, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा, बस ये मत पूछना। यहाँ पे 0 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट अज्यूम किया, ये -2 वोल्ट बड़ा है या 0 बड़ा है? ये तो मैथ्स का टेस्ट हो रहा है, बताओ। -2 बड़ा है, 0 बड़ा है? 0 0 बड़ा है, तो D1 क्या होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। D1 is a reverse bias, nothing but
ओपन। व्हाट अबाउट D2? 0 है ये, सर जो फॉरवर्ड है। 4 है। फॉरवर्ड कैसे होगा, ये 0 है। VP is 0, VN is 4। सॉरी 0 बड़ा है 4 बड़ा है, तो सॉरी इस केस में भी VN क्या है, इस केस में भी VN क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होगा। तो D2 will also be रिवर्स बायस। अगर दोनों रिवर्स बायस हो गया, अगर दोनों रिवर्स बायस हो गया तो मेरा V0 क्या होगा, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, और दोनों 0 है, तो करंट अक्रॉस R भी लगभग 0 होगा। तो यहाँ पे VI है, तो V0 क्या होगा बताइए। VI दोनों 0 है, V0 करंट equal to कुछ VI। नहीं है। 0। 0 कैसे होगा बेटा, करंट 0 है, वोल्टेज 0 नहीं है ना। करंट 0 तो वोल्टेज 0 हो सकता है क्या, नहीं है ना। नहीं नहीं सर। यहाँ पे VI जो भी होगा वही V0 होगा, isn't it? क्योंकि ये दोनों ओपन है और R के अक्रॉस ड्रॉप भी 0 है। KVL अप्लाई करो, KVL अप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस VI प्लस V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा, VI। VI। दिस इज द थर्ड केस, V0 इज इक्वल टू VI। और कुछ छूटा है क्या, और कोई वोल्टेज है greater than 4.7, nothing but you will get up to infinite, less than minus 2.7, nothing but you will get up to minus infinite। you have covered from minus infinite to plus infinite। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है, नो सर। नो। नाउ लेट अस ड्रा द वेवफॉर्म। अब आते हैं हम वेवफॉर्म पे। वेवफॉर्म पे कैसे, so I am assuming this as प्लस 8 वोल्ट पे ये दिया है ना बेटा, क्लियर है ना। VI का पीक वोल्टेज कितना दिया है, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, 8 वोल्ट दिया है, प्लस 8 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट विल बी योर पीक वैल्यू, राइट। नाउ मैं इसी में देखो यहाँ पे 8 वोल्ट है ना, तो लगभग 2.7 मेरा यहाँ पे आएगा। तो सॉरी 2.7 नहीं चाहिए ना मुझे, प्लस 4.7 चाहिए, तो 4.7 लगभग यहाँ पे आएगा। तो दिस इज माई 4.7 वोल्ट एंड 2.7 का ऐसा आएगा लगभग यहाँ पे आएगा। दिस इज माई माइनस 2.7। लेट मी ड्रा द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज लगभग ये आपका जो है इनपुट है, यहाँ पे आएगा आपको इनपुट। ये आपका इनपुट है और ये आपका 4.7 वोल्ट का वोल्टेज लाइन है और ये आपका माइनस 2.7 वोल्ट का वोल्टेज लाइन है। तो केस 1 से हमें क्या निकला था, when VI is less than
रेफरेंस लोअर रेफरेंस वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू VRL निकला। और दूसरा केस when VI is greater than VRH, what was the output voltage? VRH। केस 3 पे क्या निकला था? केस 3 पे क्या निकला था? V naught equals to VI. V नॉट इज इक्वल टू VI। VI. वो कौन सा केस था? जब VI जो है इनको बीच में होता है। तो केस 1 कौन सा रेंज है, कौन केस 2 कौन सा रेंज है बताओ? 4.7 से लेके 8 तक ग्रेटर देन VRH हो गया ना, तो ये हो गया आपका केस 2 यहाँ पे। और केस 1 कौन सा हो गया? -2.7 से सॉरी लेस देन -2.7, लेस देन -2.7 मतलब ये जो भी इसके नीचे वैल्यू हो, ये वाला हो गया आपका केस 1। केस 3 जो हो गया इन दोनों के बीच का, जो -2.7 वोल्ट और 2.7। ये क्लियर है? तो केस 3 के टाइम पे मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा V नॉट इज इक्वल टू VI। केस 1 के टाइम पे मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा -2.7 और केस 2 के टाइम पे मेरा होगा 4.7। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा? आउटपुट वोल्टेज आई एम रिप्रेजेंटिंग विद दिस पेन, दिस इज वेरी नाइस। तो 0 to 4.7 कैसे होगा आउटपुट? It will follow the input, isn't it? इनपुट को फॉलो करेगा। जब 4.7 से लेके ये पूरा 4.8, 4.9, 4.10 जो भी होगा अप टू 8, फिर माइनस फिर 7, 6, 5, 4, 3, फिर 5, 4.7 ऐसे आएगा। तो उस केस में कितना है? 4.7 से ज्यादा पे कितना है? 4.7, राइट? तो उस केस में कितना होगा आपका? 4.7 मतलब कांस्टेंट वोल्टेज। नेक्स्ट 4.7 से 2.7 तक आउटपुट वोल्टेज क्या है? इट विल फॉलो द। जब 2.7 से लेके -8 तक, -2.7 से -8 तक मतलब लेस देन VR, तो V नॉट इज इक्वल टू VRL। VRL कितना है? -2.7। Similarly, this is my output voltage. So this part has been clipped. This part has been clipped. Nothing but positive part has been clipped, and this part is also clipped. Nothing but negative part has been clipped. This part का रीजन है D2 और this part का रीजन है D1. So by using the combination of D1 and D2 in your circuit, you can flip both positive as well as negative voltage. So this is the fault. Which clipper? क्या नाम है इसका ऐसे सर्किट का? बोलो। What is the name for this clipper? Dual clipper. Dual clipper. Why dual? क्योंकि ये पॉजिटिव भी क्लिप कर रहा है और नेगेटिव भी क्लिप कर रहा है। यस इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल क्लिपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Dual clipper is the one which will clip the positive part and as well as negative part. नेगेटिव पार्ट। Clear? नो एक और चीज पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये पूछा है आपको ये भी ड्रॉ करो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हो?
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में होता है? सर Transfer characteristics will be from between V naught as well as V naught और V2 के बीच में होता है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा? by V naught V naught minus V naught minus VI and this is plus VI। ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। 4.7 वोल्ट कहाँ से आएगा? लगभग यहाँ पे पॉजिटिव है ना, 4.7, और माइनस 2.7 वोल्ट कहाँ से आएगा? लगभग सर सर माइनस 2.7। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो आप ये आपका 2.7, ठीक है। ये वाला जो रेंज है वो आपका केस 3 का रेंज है, और ये वाला जो रेंज है ये आपका केस 2 का रेंज। ये केस 2 है, इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट जो है वो आपका केस 3 का है, ठीक। और ये जो लेस देन माइनस 2.7 वोल्ट है ये वाला केस 1। केस 1 में V नॉट क्या है? VR है। केस 3 में क्या है? VI। केस 2 में क्या है? VI। VRH। केस 3 में VI, राइट? यस सर। ठीक है। और मेरा माइनस 2.7 वोल्ट V नॉट का कैसे आएगा? लगभग यहाँ पे आएगा। और V नॉट का प्लस 4.7 कैसे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ सर। ठीक। और मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में V नॉट फॉलो करेगा VI को। V नॉट फॉलोज VI नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दिस केस 4.7 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नथिंग बट ये यहाँ पे माइनस 2.7 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नथिंग बट अगर VI कितने भी बढ़ा लो, माइनस 10 वोल्ट वो डालो, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 50, माइनस 100, कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन आपका VI जो है V नॉट जो है आपका माइनस 2.4 रह जाएगा, और V नॉट यहाँ पे जो है प्लस 4.7 रह जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है दिस विल जस्ट फॉलो द VI, just follow nothing but your V naught is directly proportional to VI। V naught directly proportional to VI is nothing but your equation y is equals to mx। y is equals to mx कैसे आएगा? Straight line, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। This is how you will solve the different problems of clipper। अब कुछ भी clipper आप डायोड रिवर्स कर लो और या रेफरेंस वोल्टेज उल्टा कर लो, फिर सॉल्व करो, आपका वेवफॉर्म अलग बनेगा। और फिर डायोड ये इन दोनों का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? लगभग 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन का V नॉट ड्रॉ कर सकते हो, और V नॉट वर्सेस VI नथिंग बट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हो। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? द ग्राफ बिटवीन V नॉट एंड VI इज नथिंग बट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट यू हैव टू एबल टू आंसर। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछने का चांस है। क्लियर? ऐसे आप कोई भी सर्किट का बना सकते हैं। क्लियर? दिस इज अबाउट क्लिपर। सीरीज क्लिपर कर लिया हमने, शंट क्लिपर कर लिया, और कॉम्बिनेशन भी कर लिया, नथिंग बट ड्यूअल क्लिपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट योर क्लिपर।
and clamper is a very small topic. We'll finish it by next class. ओके सर, थैंक यू सर। ओके, इज इट क्लियर? एंड आई विल शेयर, ये जो भी क्लास में पढ़ाया ना, ये चीज आपको पीडीएफ कल भी मिला होगा, आज भी मिल जाएगा, इसी चीज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सो दैट आपको अगर बीच में भी रेफर करना हो तो मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन लीव। थैंक यू।